Hello everyone, a very warm welcome to the first session of doubt clearing session. Good morning, and my name is Aman. I think most of you know me. You all have been going through the course, I believe. So before I begin, let me know if I am audible, if you guys can hear me. Kindly type in the comment section so that I can know that you guys can hear me. Thanks Deepak sir, thanks. Namaste Santosh, Namaste Diksha ji. Okay, so it's 11 o'clock and we must start today's session. So I think very few people have joined by now, only 7 viewers I can see, and let's wait for a couple of more minutes so that more people can join in and take advantage of today's session. And before I move forward, first of all I would like to know your experience so far, what you have learned so far from the course, whether the course is good, bad, you want some more improvements in that, whether you are able to learn something out of this course, whether this is adding some value to your learnings, and so that we can move forward accordingly. I have received a couple of queries from a couple of students. I think that's a huge list that I have. So we will take questions one by one from the list and try to solve your queries, try to answer all your queries. Getting tough. Okay, Santosh. Astrology is not easy anyway, but it's not tough also. If you follow the course material, if you follow whatever the text material is given, and first you have to understand, first you have to learn a lot of things. Once those things are learnt, then it's quite easy to implement. So yes, you have to push. You are quite correct, Santosh. You have to push yourself because it's new. It will take some time, and you will definitely get that level where you will have a lot of things by heart. And from that point onwards, when you try to analyze the horoscope and when you apply the principles, you will get the answers. And one more thing I would like to ask you is that I made this course in English, and there was a specific reason behind it. This is really interesting, but I find difficult to remember the concept. Yes, Ashish, with time you will, when you apply that principle on hundreds of horoscopes, when you regularly refer your notes and try to analyze all the horoscopes, then it will just reside in your subconscious, and that is the stage that everyone would like to have, and you will definitely also get there. So what I was talking about is that I made this course in English for a purpose, that there is a larger audience outside India where my intention is to, spread the word about astrology, so that they can learn about astrology, they can know about Indian system of astrology, and to some extent I am successful. The fundamental course has students from 25 countries as of now, and that has only happened because the course is in English. The other introductory courses that I developed, students are enrolled into this course, and those are from 76 countries. But having said that, because now we have students from India and they are growing rapidly, so we will definitely move towards Hindi courses as well. And if you guys are all okay, maybe we can start from today itself, that this today's session can be done in English and Hindi both. So I will wait for your inputs, and accordingly we will move forward. There is a lot of information, so it takes a lot to remember. Yes, Diksha, there is a lot of information and there are a lot of rules that you have to remember as well. Santosh, that's just a matter of nomenclature. सिर्फ एक नाम है. Yes, please. Okay, Hindi. Good. Okay. So
I think yes, I also personally feel English is good. Yes संतोष, I also personally feel कि अगर बेशक हमारे पास टेक्स्ट सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट अगर उसको हिंदी में समझाया जाए, लोगों को समझ में आना चाहिए. दैट इज द प्राइम कॉन्सेप्ट, दैट इज द प्राइम एजेंडा. इंग्लिश में हमने कोर्स डेवलप किया सो दैट लार्जर ऑडियंस तक हम पहुंच सकें, लोगों को अच्छे से समझा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें. दैट्स वन पॉइंट. एंड यस परवेज जी, थैंक यू एंड वेलकम. आई थिंक यू ज्वाइंड येस्टरडे ओनली, सो अभी आपने आई थिंक स्टार्ट ही किया होगा. सो होपफुली यू विल ऑल्सो रीच अ पर्टिकुलर लेवल वेयर आपके बहुत सारे सवाल आएंगे. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. जितने ज़्यादा सवाल मेरे तक आएंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ नया मैं भी सीख पाऊंगा, क्योंकि सवाल जितने आते हैं, जितने क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, उससे जवाब देने से पहले हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है. सो हैविंग सेड दैट, सो अभी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आगे बढ़ते हैं. सो एज ऑफ नाउ, अभी जब से हमने कोर्स को इंडिया में अपने पोर्टल पे लॉन्च किया, यहाँ करीब 225 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं. सबको ये मैसेज कन्वे किया गया था रिगार्डिंग डाउट क्लियरिंग सेशन, और बहुत लोगों ने इसका बेसब्री से इंतज़ार किया, और अभी 10-12 लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टेकिंग आउट टाइम ऑन सैटरडे. एडिंग सम एग्जाम्पल आफ्टर द कॉन्सेप्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल विल बी यूजफुल. इंग्लिश विल बी गुड. यस यस आशीष, वी विल टेक अप अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. इवन जो भी क्वेरीज हमारे पास आई हैं उनका आंसर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा जा सकता है. अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकल वे में आपको समझाऊंगा तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोग नहीं उठा पाएंगे. सो ऑलरेडी हमने 6 मिनट तक, वी हैव वेटेड फॉर 6 मिनट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरीज. बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास ऑलरेडी हैं, सो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. I think now you can see the list of queries, and in the meantime I will have to see the comments as well, so let me open that window on the second screen as well. Okay, so let's start with the queries then. I will just leave the camera as is because that will take up a lot of time. I don't know what's the issue with the camera today. Anyway, let's move on. So Ashish Gupta has sent a list of 4 queries. So Ashish ji, the first one I take it up for you. How do we determine the benefics and malefics in a kundali? Whether it depends on the rashis placed in a house or the stars placed in a house. Okay. So when you say stars, I believe you mean planets, because planets are rotating in the zodiac, and stars basically we call the nakshatras. नक्षत्रा को हम स्टार बोलते हैं. हाउ डू वी डिटरमिन बेनिफिक्स एंड मेलिफिक्स? दैट्स द फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप हमारा यही है. सो लेट मी ब्रिंग अप अ हॉरोस्कोप, एनी हॉरोस्कोप, नॉट दिस इज द रैंडम हॉरोस्कोप ऑफ टुडेज प्रश्ना चार्ट. ओके, सो व्हेन यू से बेनिफिक एंड मेलिफिक आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर द मूल त्रिकोणा साइंस ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. दैट इज द क्रक्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी. हमें मालूम है कि प्लैनेट्स राशियों को रूल करते हैं. कुछ प्लैनेट्स एक राशि को रूल करते हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा. कुछ प्लैनेट्स 2 राशियों को रूल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम शुक्र का एग्जांपल लेते हैं, वीनस, टॉरस यानी कि वृष और लिब्रा यानी कि तुला, ये 2 राशियां शुक्र रूल करता है. शुक्र इन 2 राशियों का स्वामी है. लेकिन शुक्र का मूल त्रिकोण साइन लिब्रा है, तुला. इसी तरह से बृहस्पति, जुपिटर, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, धनु और मीन, इन 2 राशियों को रूल करता है. लेकिन सेजिटेरियस जो कि धनु इज द मूल त्रिकोण साइन ऑफ जुपिटर. सो मूल त्रिकोण एक्चुअली हैज द आंसर टू योर क्वेश्चन आशीष जी. नाउ वी ऑल्सो नो दैट 6th house, 8th house and 12th house. I think you guys can see my screen as well, right? Please confirm quickly so that I can move forward. 6, 8 and 12. These are bad. Quickly
confirm whether I am audible and my screen is also visible. I mean, if camera is not working, that's fine with me, but the screen should be visible, otherwise you guys cannot understand anything. Yes, thanks Aishwarya, thanks Santosh, thanks Deepak, thanks Ashish. Okay, let's move forward. So 6, 8, 12, छठा घर जहाँ की तुला राशि है, 8वां घर जहाँ की धनु राशि है और 12वां घर जहाँ की मेष राशि है। अगर 6, 8 और 12 में कहीं भी किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि है, तब वह ग्रह, वॉइस ब्रेक कुड बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यू एट योर एंड, बिकॉज आई एम एट वेरी हाई स्पीड इंटरनेट. एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो 6, 8, 12 में कहीं भी अगर कोई मूल त्रिकोण साइन है, उस राशि का स्वामी अनफेवरेबल होगा. अब इस राशि में, इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखें, छठे घर में तुला राशि है जो कि मूल त्रिकोण साइन जो वीनस का है. ऑडियो नॉट गेटिंग नाउ. ओके ओके, आई थिंक सम ऑफ यू आर गेटिंग सम इश्यूज विद द ऑडियो, probably because of internet speed maybe. So if someone is not getting the proper sound, maybe they will have to watch the recording. Anyway, तो छठे घर में तुला राशि है जो कि मूल त्रिकोण है शुक्र का, तो शुक्र वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. 8वें घर में धनु राशि है जो कि मूल त्रिकोण है बृहस्पति का, तो बृहस्पति तुला वृष राशि वालों के, वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. 12वें घर में मेष राशि है, अरीज साइन विच इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल. सो मंगल वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. बाकी सारे ग्रह को हम बेनिफिक मानेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आशीष जी हैड, हाउ डू वी डिटरमिन बेनिफिक्स एंड मेलिफिक्स? दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. टू मेक इट मोर क्लियर, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक न्यू प्रश्न चार्ट फॉर टुडे. दिस इज जेमिनी असेंडेंट. छठे घर में स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण साइन नहीं है. मंगल इसको रूल जरूर करता है, लेकिन मंगल का मूल त्रिकोण मेष है, तो छठे घर में कोई मूल त्रिकोण नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 8वें घर में मकर है, मूल त्रिकोण नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 12वें घर में वृष है, मूल त्रिकोण नहीं है. 6, 8, 12 किसी भी घर में मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो सारे ग्रह फेवरेबल हैं, सिर्फ राहु और केतु को छोड़ के. राहु और केतु जनरली हम अनफेवरेबल मानते हैं और ये स्पेसिफिक केसेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो कि कोर्स में अच्छे डिटेल में हमने कवर किया है. किसी समय डाउट क्लियरिंग सेशंस में राहु केतु को अलग से भी हम कवर कर लेंगे. बट अभी के लिए अगर पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखें, जहां आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल की बात है, 6, 8, 12 में कहीं भी मूल त्रिकोण आ गया तो उसका स्वामी अनफेवरेबल, बाकी सारे फेवरेबल. इन शॉर्ट, आई थिंक, इज इट क्लियर? मारक हाउस लॉर्ड्स आर ऑलवेज अनफेवरेबल इवन इफ. ऐश्वर्या जी, मारक्स कॉन्सेप्ट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड दैट्स वाई देर इज अ स्लाइट डिफरेंस. थोड़ा सा फर्क रहेगा सिस्टम अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स में और क्लासिकल के कॉन्सेप्ट्स में. क्लासिकल के कॉन्सेप्ट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसके साथ मिक्स ना करें, जल्दी समझ पाएंगे. मारक हाउस लॉर्ड्स आर ऑलवेज अनफेवरेबल इवन इफ एक्सॉल्टेड, और इज दिस जस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिक एंड मेल? यस, दैट इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन. क्लासिकल में काफ़ी जगह आपको जनरल एक्सप्लेनेशन मिलेगी. फॉर एग्जांपल मारक हाउस कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल साढ़े साथी कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल मांगलिक कॉन्सेप्ट. जनरली अगर आप देखेंगे, अगर मांगलिक के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए. कहीं होती है, कहीं नहीं होती. वेयर इज द आंसर? आंसर लाइज इन द फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिक एंड मेलिफिक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी, वी गेट द आंसर. That is where we say that this is the functional nature. In that horoscope, how the planet is going to function, that is why the term functional nature is there. If it is the sixth lord means its mool trikona is falling in the 6th house, then functionally it is unfavorable. If its mool trikona is falling in the, like in this horoscope, mool trikona of Mars is falling in the 11th house, so Mars is functionally favorable planet for the native. अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके ऊपर और इम्पैक्ट कितने पड़ रहे हैं, दैट विल गवर्न वेदर उसका जो रिजल्ट है किस लेवल तक इंसान को मिलने वाला है. एनीवे, आशीष जी, आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिक्स एंड मेलिफिक्स.
And by the time you reply, let me take up your second question. I want to understand how do we determine the power of moon in the Kundali, whether moon is weak, normal or strong. See, the answer that I now gave is, that will be applicable on any planet. Can we take in a horoscope 6, 8, 12 in the Adhipatis are always malefics even if they are Shubh Grahas? Yes, Jupiter, Venus, Buddha, yes, those are the general nature, general significations or the general nature of the planet you are talking about. जुपिटर भी अब जैसे हमने टॉरस का एग्जांपल लिया था, इससे पिछला एग्जांपल जहाँ पे 8th हाउस में जुपिटर का साइन था, सजिटेरियस था, तो जुपिटर वाज अनफेवरेबल. यस, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी टेकन अप लाइक दैट. ओके. Determine the power of moon. Determine the power of any planet, Ashish, not only moon. So there is a set process to identify the strength of the planet. You can identify the strength of moon as well, applying that principle. How do we do that? Okay. For example, in this horoscope, if you want to identify the strength of moon, पहली चीज कि ग्रह बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए, मतलब 5 डिग्री से नीचे और 25 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे 5 डिग्री से ऊपर है तो मून इन्फेंसी में नहीं है, मून ओल्ड एज में नहीं है. डिग्री वाइज मून इज इन स्ट्रेंथ. ओके. इसके अलावा उसके मूल त्रिकोण साइन पर कोई एफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे 19 डिग्री का लगन है और ये आई थिंक MEP का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स अप्रोच में, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप. जब आप चैप्टर 8 करेंगे, based on this concept, can I say that if there is no मूल त्रिकोणा राशि in 6, 8 and 12, then no planet will. Yes, that's what we covered just now, Ashish. In Gemini ascendant chart 6, 8, 12 में कहीं पे भी मूल त्रिकोण साइन नहीं है तो सारे प्लैनेट फेवरेबल हैं एक्सेप्ट राहु एंड केतु, राइट. सो चैप्टर 8 जब आप करेंगे तो उसमें आपको सारे सिस्टम अप्रोच के रूल्स कवर होते हैं और सबसे लंबा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चैप्टर 8 ही है. तो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझें कि जो राइजिंग डिग्री हमारे हॉरोस्कोप में है 19 डिग्री, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द एंटायर हॉरोस्कोप. सारे घरों में 19 डिग्री के आसपास जो जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनका उन हाउसेस पे और जहां उनका एस्पेक्ट होगा वहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट होगा. अब ये एक रैंडम हॉरोस्कोप हमने लिया हुआ है जिसमें 19 डिग्री इज द राइजिंग साइन, राइजिंग डिग्री. So 19 डिग्री इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप. सो सेकेंड हाउस जो कि जहां कैंसर साइन प्लेस्ड है, विच इज द मूल त्रिकोणा साइन ऑफ मून. मून गवर्न्स कैंसर और इस साइन पे, इस हाउस पे केतु, लेट मी मार्क इट फॉर यू. 17 डिग्रीज का जो केतु है, इट इज एफ्लिक्टिंग द सेकेंड हाउस बाय इट्स 9th एस्पेक्ट. So the मूल त्रिकोणा sign of moon, चंद्रमा का मूल त्रिकोण sign house is afflicted. That is why moon is weak in this horoscope. Strength of moon is identified by the afflictions on its मूल त्रिकोणा sign, on its house of placement. अब जहां पे चंद्रमा बैठा है वहां भी केतु का है. So ये सारे इन ग्रहों को कमजोर करेगा. अगर हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, लेट मी कंटिन्यू विद आशीष जी's क्वेश्चन ओनली. लेट मी टेक अप अनदर एग्जांपल. let's open any case study. Actually I am working on the second course, the advanced course, and these are the case studies from them. Let's see. Let me just remove everything that is here so that we do not get any bias. Okay. So in this horoscope, अगर यहाँ पे हमें चंद्रमा की स्ट्रेंथ निकालनी है, रैंडम हॉरोस्कोप. So moon is 29 degrees 49 minutes, utter old age. Moon is rendered weak because of its being in the old age. चंद्रमा वीक है यहाँ पे. Secondly, this Rahu from 27 degrees is afflicting this moon by its 9th aspect. राहु से चंद्रमा को जो एफ्लिक्शन है ये फर्दर चंद्रमा को वीक कर रहा है. सेकेंडली, राइजिंग डिग्री 10 डिग्री है जहां पे एर्थ लॉर्ड जो कि मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट मर्करी इज प्लेस्ड. सो मर्करी इज अफ्लिक्टिंग इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट. सो मून
जिस घर में बैठा है उस घर में भी अफ्लिक्शन है, मून इज अगेन वीक. So to identify the strength of any planet, only Rahu and Ketu affliction on moon or any other planet's affliction as well. See, in this horoscope we have to identify. If the malefic planets are also afflicting moon, then that also will destroy the strength of moon. किसी भी ग्रह से आ सकती है malefic influence. इस केस में राहु से आ रही है. अब अगर मरकरी भी यहाँ पे 28 डिग्री का होता तो मरकरी से भी मून को एफ्लिक्शन आती है और मून से भी मरकरी को जाती है, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में दोनों अनफेवरेबल हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. और इस तरह से आप किसी भी ग्रह की फेवरेबल अनफेवरेबल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ग्रह का डिग्री वाइज स्ट्रांग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज इन इन्फेंसी और ओल्ड एज और स्ट्रांग बाय डिग्रीज. सेकेंडली, वो अपने डेबिलिटेशन साइन में तो नहीं है. थर्ड, नवांश में तो डेबिलिटेटेड नहीं है. फोर्थ, उसके मूल त्रिकोण पे तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है. फिफ्थ, जिस घर में वो प्लेनेट बैठा है वहां तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है. सिक्स्थ, जिस घर में वो बैठा है अगर वो मूल त्रिकोण साइन है तो उसका जो लॉर्ड है, दैट मीन्स द डिस्पोजिटर ऑफ दैट प्लेनेट, उसकी क्या कंडीशन है. ये जब प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं, देन यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लेनेट. Now, if I leave apart moon in this horoscope, this example horoscope, if I take the example of Saturn, for example, शनि जो कि लग्नेश है, लगन का स्वामी है, 6 डिग्री, मोर देन 5 डिग्री, स्ट्रॉन्ग बाय डिग्रीज. लगन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट है? नहीं है. राहु का 9th एस्पेक्ट है, बट दैट इज क्वाइट वाइड. 10 डिग्री के असेंडेंट में 27 डिग्री का राहु इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट नेगेटिवली द असेंडेंट. तो शनि के मूल त्रिकोण हाउस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है. शनि खुद डिग्री वाइज स्ट्रांग है. शनि जहां बैठा है उस घर पे किसी प्लेनेट की अफ्लिक्शन नहीं है. शनि अपने डेबिलिटेशन साइन में नहीं है. नवांश में शनि डेबिलिटेटेड नहीं है, तो शनि स्ट्रांग है. मोर ओवर, शनि यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के 5 डिग्री ऑर्बिट में है. 10 डिग्री का हमारा असेंडेंट है, 6 डिग्री का शनि 4 डिग्री अवे बैठा है. और यहाँ से फेवरेबल एस्पेक्ट सैटर्न का असेंडेंट पे जा रहा है भाई. इट्स 10th एस्पेक्ट. यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट्स गिविंग इट्स फेवरेबल एस्पेक्ट टू दी 6th हाउस, टू दी 10th हाउस. तो प्रोफेशन में, जॉब में, आदमी के पर्सनैलिटी में, सब जगह शनि का मेजर योगदान रहने वाला है. स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लैनेट इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. कैन वी मूव फॉरवर्ड? When there are multiple planets placed in the single house, then how do we determine which one will rule that house? See, if you talk about ruling or the lordship of the house, lordship तो उसके मूल त्रिकोणा साइन से ही पता चलेगी. अब यहाँ पे 3 ग्रह 9वें घर में बैठे हैं, लेकिन इस घर का लॉर्ड शुक्र ही रहेगा, क्योंकि शुक्र इसको रूल करता है. हाँ, बाकी प्लैनेट्स का वहाँ बैठने की वजह से, उस हर घर में प्लेसमेंट की वजह से इम्पैक्ट जरूर होगा उस हाउस पे, बट लॉर्डशिप उसकी, अगर हम स्पेसिफिकली लॉर्डशिप टर्म यूज करें तो वो वीनस की रहेगी. इम्पैक्ट मरकरी का यहाँ बल्कि वीनस से ज्यादा है इस वाले चार्ट में, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि मरकरी MEP पे प्लेस्ड है. कोई भी प्लेनेट मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के कितना नजदीक है और कितना दूर है, दैट विल गवर्न इट्स इम्पैक्ट ऑन दैट हाउस. सिमिलरली, अब यहाँ जब मरकरी MEP पे प्लेस्ड है और 7वां एस्पेक्ट तीसरे पे देगा, तो तीसरे पे भी मरकरी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा मंगल के बाद, क्योंकि मंगल तीसरे घर का स्वामी है, तो उसका इंपैक्ट तीसरे घर पे रहेगा. लॉर्डशिप इस 3rd हाउस पे मार्स की ही रहेगी, बट इंपैक्ट वहां पे मरकरी का ज्यादा रहेगा क्योंकि वो MEP के नजदीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी अबाउट राहु एंड केतु, वेदर दे आर बेनिफिक और मेलेफिक बाय देयर पोजीशन इन द कुंडली. वेरी गुड क्वेश्चन आशीष जी. सी, इन दिस केस Rahu and Ketu are placed in 5th and 11th house. They are well placed. 6, 8, 12 में नहीं है तो राहु केतु भी well placed हैं, चाहे वो मेलिफिक हैं. केतु का अगर एग्जांपल लें, केतु इज नॉट अफ्लिक्टिंग एनी प्लैनेट एंड केतु इज नॉट अफ्लिक्टिंग एनी हाउस. 27 डिग्री का केतु है. 5वां एस्पेक्ट, लेट मी मार्क इट एंड मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर. ओके, केतु का 5th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे जाएगा, बट MEP पर नहीं है. MEP 10 डिग्री है. यही अगर केतु 10 डिग्री का या 10 डिग्री से 5 डिग्री नीचे या ऊपर होता तो इसका इम्पैक्ट जरूर होता, और उस केस में राहु का भी वही डिग्री होती तो 6 घर डिस्ट्रॉय हो जाते.
सेवंथ एस्पेक्ट एनीवे, व्हाट इज MEP? मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट संतोष जी, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप, द राइजिंग डिग्री, जो डिग्री हमारी लगन की होती है, दैट इज MEP. These are two different questions on the aspect of planet. I will take your question after this, Manikam ji. Okay, and Ketu will give its 9th aspect to the 7th house. Let me first continue with this about the question of Rahu Ketu. Question by Ashish ji that about Rahu Ketu, whether they are benefic or malefic. Rahu and Ketu are generally malefic, and they will give good result in exceptional cases. What are those exceptions? That Rahu and Ketu should not be weak by degrees. Rahu and Ketu should not afflict any other planet or house. Then only they can give good result during their sub periods. अपनी अंतरदशा में तब वो अच्छा रिजल्ट देते हैं. अब इस कुंडली में एक प्रॉब्लम ये है कि राहु ने चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर दिया, सो राहु तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला. दूसरा, ये दोनों ओल्ड एज में हैं. कोई और एग्जाम्पल हो जिसमें मान लीजिए राहु केतु 15 डिग्री के हैं, MEP से दूर हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, तब अपनी दशा में वो अच्छा रिजल्ट दे देंगे. लेकिन तब भी कंडीशन ये है कि अगर ट्रांजिट में उनकी एफ्लिक्शन आ गई या किसी मैलिफिक की इन्फ्लुएंस आ गई, तब वो ट्रबल देना स्टार्ट कर देंगे. जनरली दे गिव वेरी बैड रिजल्ट बिकॉज दे आर जस्ट दी शैडोई प्लैनेट्स, जस्ट हिडन पॉइंट इन दी ज़ोडिएक, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड में, और दे हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दैम. Okay, let's move on to the next question. Okay, let me first take the question that's coming from the participants who are there. These are two different questions on the aspect of planets. It's said that generally the aspect of benefic planets like Jupiter, Venus, Moon, the strength of those houses will become more stronger if they are benefic. That's the condition in systems approach. So we always have to look at the functional nature of the planet. Generally they are considered to be benefic, but that concept doesn't give good result. अगर बृहस्पति फेवरेबल है, like in this horoscope, in example horoscope, Jupiter is 11th lord, it will give good result. If Jupiter is 12th lord, if Jupiter is 6th lord, Jupiter is 8th lord, when I say Jupiter is 6th, 8th or 12th lord, what I mean is when Sagittarius sign falls in 6, 8 or 12, in those cases Jupiter's aspect, if it is coming closer to the MEP or any horoscope, उसका aspect किसी भी ग्रह पे या किसी हाउस पे MEP के नज़दीक होगा तो डिस्ट्रॉय करेगा उसके सिग्निफिकेशंस को. जनरली कैन नॉट, एनी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज इज. Moon, the strength of Venus, Moon strength of those houses will become more stronger. In case Guru aspects 6, 8 और 12, what will be the beneficial position of those houses? See, अगर जुपिटर हमारा फेवरेबल है, अब इस केस में ही एग्जांपल लीजिए, यहाँ 8वें घर को बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 17 डिग्री का बृहस्पति है, 14 डिग्री के सूर्य को भी देख रहा है, MEP से थोड़ा सा दूर है. अगर MEP पे इसकी दृष्टि होगी 8वें घर पे तो उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा. 8th हाउस जिसकी सिग्निफिकेशंस ऑकल्ट साइंस है, रिसर्च एरिया है, तो उन एरियाज में जुपिटर विल गिव द गुड रिजल्ट्स. अगर यही जुपिटर हमारा अनफेवरेबल होके MEP को इम्पैक्ट करेगा 8th हाउस के, तो इनहेरिटेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि 8th हाउस ऑल्सो गवर्न्स इनहेरिटेंस. अगर MEP से अवे उसका इम्पैक्ट है और कोई प्लेनेट भी वहां पे है, तो ऑकल्ट के अंदर अनफेवरेबल जुपिटर भी अच्छे रिजल्ट दे देगा. वेदर 6th हाउस कारकत्व इज नॉर्मल, वेयर इज दैट क्वेश्चन. Run a court case will increase, or because the aspect of Guru, the bad effect will be reduced. Bad effect will be reduced only if Jupiter is favorable. Yes, that is normal, but that planet seeing its own house will be beneficial. What happens if 6th lord seeing the 6th house? Yes, अगर फेवरेबल प्लैनेट अपने हाउस को देखेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. अनफेवरेबल प्लैनेट का रिजल्ट पॉजिटिव एक ही कंडीशन में आता है कि अगर जैसे ये हॉरोस्कोप में 6th लॉर्ड चंद्रमा है, 6ठे घर का स्वामी है, 6ठे में बैठा है, तो वो उसकी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी. 6ठे घर का स्वामी चंद्रमा 12वें में बैठ के 6ठे को देखेगा तो डिस्ट्रॉय करेगा, अगर MEP के नज़दीक देख लिया तो. ग्लैड दैट यू गॉट इट मणिकम जी. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी one-on-one as well. So let's move on to the next query. Kaustav Santkhe ji, I don't know whether Kaustav ji are online or not, but anyway,
I have a doubt about how to arrive at ascendant. The rising sign, rising at the time of birth at the eastern horizon, that is the definition. That we take as ascendant. So जब आप कुंडली बनाते हैं उस समय क्या लगन ईस्टर्न होराइजन में चल रहा है, अब यहाँ पे एक्वेरियस असेंडेंट है। अगर हम अभी का प्रश्ना चार्ट क्रिएट करते हैं, सो जेमिनी इज राइजिंग एट दिस टाइम, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर आपका क्वेश्चन मैनुअल हॉरोस्कोप मेकिंग से है तो वो इस कोर्स का अभी पार्ट नहीं है और वो लेवल नेक्स्ट लेवल पे आता है। आज की डेट में हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज एनीवे वी विल बी यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स टू क्रिएट द हॉरोस्कोप्स, बट we will sometime definitely cover that area, that how to manually make the horoscopes, how to place various planets into the chart in various houses. When you make the horoscope, आपको हर ग्रह का पता होता है आज वो ग्रह किस राशि में चल रहा है। Like if we look at the ephemeris, the planetary position table, this is how we have it कि 10 तारीख को सूर्य पाइसिस में 25 डिग्री का होगा, 27 अप्रैल को सूर्य अरीज में 12 डिग्री का होगा, मंगल जेमिनी में 7 डिग्री का होगा, बृहस्पति एक्वेरियस में 3 डिग्री का होगा। तो अकॉर्डिंगली यू प्लेस दी प्लैनेट्स। What is the recommended software? Sahil ji, you can use any software. See, I am using Jyotish Tools. I have shared all the information in the course as well. I use Jyotish Tools from Brian Cornett. He is my fellow student from Professor V.K. Chaudhary. And he has made a very good software and systems approach. You can use any software. My only recommendation is जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, मेक श्योर कि उसमें डिग्रीज जो हैं प्लैनेट के आगे लिखी हों। इससे आपकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, आपकी एनालिसिस करने का जो स्पीड है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये, लेट मी जस्ट मार्क दिस इफ आई कैन, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट और नॉट। ओके, I am actually trying to show you something. No, not like that. If I again I am doing the same mistake. Okay, if I just mark it like this, that there is no degrees mentioned in front of the planet. अब ऐसा चार्ट अगर मेरे सामने है कि सूर्य 10वें घर में बैठा है, केतु छठे घर में बैठा है, डिग्रीज मेरे सामने चार्ट में नहीं है, एक अलग टेबल में आ रही हैं, कितनी बार मैं उस टेबल को रेफर करूंगा। वही अगर मेरे सामने एक ऐसा चार्ट है जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन मेंशन्ड है हॉरोस्कोप में और साथ ही डिग्री लिखी हुई है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द हॉरोस्कोप। अब यहां मुझे पता है कि मरकरी 17 डिग्री का है, ओके, केतु 17 डिग्री का है, तो केतु मरकरी को एफ्लिक्ट कर रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान हो गया इस चार्ट को देखना। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, मेक श्योर कि उसमें प्लैनेटरी पोजीशन जब प्लैनेट्स की प्लेस्ड हो हाउसेज में, वहाँ साथ ही डिग्रीज लिखी हो। अलग टेबल तो हर सॉफ्टवेयर आपको दे देगा, बट प्लैनेट के साथ जहाँ डिग्री लिखी होगी आपकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। या फिर थोड़ी मेहनत कीजिए, अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एक पेपर पेन लेके बैठिए, उस पर एक अपना हॉरोस्कोप ड्रॉ कीजिए, उसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कीजिए, चार्ट देख के डिग्रीज लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। लाल पेन रखिए मार्क करने के लिए अनफेवरेबल को। अब इस केस में ये जेमिनी एक्चुअली इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू शो। लेट मी ओपन एनी अदर हॉरोस्कोप। इफ वी हैव, मान लीजिए ये वाला हमने हॉरोस्कोप लिया, एक्वेरियस असेंडेंट, ओके। अब इसमें आपने हॉरोस्कोप बनाया किसी भी सॉफ्टवेयर में, सेम हॉरोस्कोप बन के आएगा आपके सामने, सेम डिग्रीज का टेबल आएगा आपके सामने। तो आप पेपर पेन लेकर उस पर चार्ट ड्रॉ कीजिए, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कीजिए, प्लैनेट्स के आगे ही डिग्रीज अपने पेपर पे लिखिए, लाल पेन से अनफेवरेबल्स को मार्क कीजिए। चंद्रमा और मरकरी 6 और 8वें के स्वामी हैं, अनफेवरेबल हैं, उसको लाल से मार्क कर लीजिए बिकॉज दे आर अनफेवरेबल। रेड, डेंजर इन द लाइफ बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल नेचर, फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट। जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, फेवरेबल हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ग्रीन से मार्क कर दीजिए। जो वीक हैं उनको किसी और कलर से मार्क कर दीजिए, तो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब ये ज्योतिष टूल्स में ये ऑटोमेटिक हमें मिलता है, तो हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, दैट्स इट। इवन इफ, अच्छा एक इसका नुकसान भी है
ये कलर कोडिंग जब होके आ जाती है तो पीपल गेट बायस्ड, जो स्पेशली नया स्टार्ट करते हैं, अच्छा ये प्लैनेट ग्रीन है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। लेकिन अगर वो ट्रांजिट में वीक हो गया तो उस समय नुकसान दे देगा ना। अब ये प्लैनेट वीक है, इसका रिजल्ट तो एवरेज होगा, लेकिन ट्रांजिट में अगर स्ट्रेंथ में है, दशा चल रही है, फेवरेबल एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये एक बायस्डनेस भी हमारे पास आ जाती है। बेस्ट थिंग इज इफ वी जस्ट डू इट ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ इफ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन इज फेवरेबल, विच वन इज अनफेवरेबल, विच वन इज स्ट्रांग, विच वन इज वीक, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनीवे यू कैन गेट वेन एवर यू कंप्लीट द कोर्स, और जब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की बात आएगी तो आपको एक असाइनमेंट सॉल्व करनी होगी। असाइनमेंट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एनालिसिस करने के लिए वो इस फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो बायस्डनेस नहीं रहती, हमें अपना इंटेलेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना होता है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रेंथ में है, कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, कौन सा वीकनेस लेके है, किस पर किसकी एफ्लिक्शन आ रही है। तो कहने का मतलब कि अगर कलर्ड हॉरोस्कोप हमारे सामने है तो एक हमारी स्पीडी तो हमने कैलकुलेशन कर ली अपनी, बट थोड़ा सा बायसनेस कभी कभी होता है। हाउ टू गेट दिस सॉफ्टवेयर विच यू आर यूजिंग? सर, jyotishtools.com, you can go on the website and purchase the software. I have different softwares, I have all other softwares also, मेरे पास कई और सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बट प्राइमरीली मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। I all have paid softwares. Some planets are called samgraha. How do we see that? Samgraha, that concept is of classical concept. Samgraha is a misleading concept. I will not be able to answer that right now because we do not use that concept. और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। Okay. Questions from Aishwarya Verma ji. Aishwarya ji, if you are online, kindly let me know. If personal planet is retrograde, I don't know what do you mean by personal planet. If person's planet, then it's okay. If any planet is retrograde and conjunct with Rahu and Ketu, how do we interpret as Rahu Ketu are following and not causing shadow or clash? See, if the planet is conjunct with Rahu and Ketu, that is called afflicted planet. Rahu and Ketu are severely passing on their negativity to that planet, regardless of the planet is in direct motion or in retrograde motion. Great, you are online, very good. So any planet that is conjunct with Rahu and Ketu or getting the influence of Rahu Ketu by their aspect, वो affliction मानी जाएगी। राहु केतु उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। कौन सी सिग्निफिकेशंस? जनरल सिग्निफिकेशंस एंड पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। अब यहाँ पे अगर हम चंद्रमा का ही एग्जांपल ले लें, विच इज गेटिंग द अफ्लिक्शन फ्रॉम राहु। सो मून इज द सिक्स्थ लॉर्ड एंड मून इज द जनरल सिग्निफिकेटर ऑफ मदर। मून इज द जनरल सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस की, हालांकि मून का फोर्थ हाउस से कोई रिलेशन नहीं है, बट फोर्थ हाउस का जनरल सिग्निफिकेटर तो है मून, एंड दैट इज गेटिंग द अफ्लिक्शन फ्रॉम राहु। तो जनरल सिग्निफिकेशन ऑफ मून एंड व्हेन वी से पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, द हाउस दैट मून इज रूलिंग, that is the particular signification, and the house where moon is placed, all those significations will be destroyed by Rahu. If not conjunct and in the same house, then yes, as I said, you have to look at their longitudinal difference. Rahu का impact वहां पर की हम बात करें, हम बार बार अफ्लिक्शन फ्रॉम राहु टू मून क्यों बोल रहे हैं, हम राहु टू वीनस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वीनस 14 डिग्री का है। 14 डिग्री के वीनस पे राहु का डायरेक्ट क्लोज इंपैक्ट नहीं, इंपैक्ट तो है उसका, बट इतना क्लोज नहीं है, बहुत वाइड है। तो उस केस में राहु का जो नेगेटिव इंपैक्ट वीनस पे है उतना नहीं होगा। मोर ओवर वीनस यहाँ पे अपने ही मूल त्रिकोण साइन में बैठा है, तो इंपैक्ट राहु का कितनी क्लोज जा रहा है उस प्लेनेट पे, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। Next question. When looking at the aspect, does one consider impact of planet on house only or sign also? See, when we say on house, then the significations of that house is also is destroyed. साइन भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर वो मूल त्रिकोण साइन है, अब यहां पर हमने बोला मर्करी इज प्लेस्ड इन दी 9th हाउस,
सो नाइन्थ हाउस की सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो गई। और साइन कौन सा है वहां पे? लिब्रा। सो लिब्रा का लॉर्ड कौन है? वीनस। ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन, क्योंकि वहां पे नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड सेम ही है। अगर ये लॉर्डशिप डिफरेंट हो जाए तब शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। लेट मी टेक अप एनी अदर एग्जांपल लाइक दिस वन। अब इसमें एमईपी एफ्लिक्शन कोई नहीं है लेकिन फेवरेबल इंपैक्ट है, राइट, लेकिन वो भी मूल त्रिकोण पे नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड एग्जाम्पल। लेट मी ओपन एनी अदर चार्ट, और इफ यू गाइज कैन ऑल्सो वांट टू शेयर एनी चार्ट वी कैन टेक इट अप एनीवे, राइट। अब ये 12 डिग्री का असेंडेंट है, सो 12 डिग्री इज द एमईपी, और 13 डिग्री पे मंगल प्लेस्ड है, 8th लॉर्ड, मोस्ट मैलिफिक प्लेनेट, एफ्लिक्टिंग द 12th हाउस। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हेन लुकिंग एट द एस्पेक्ट और द कंजंक्शन, डज वन कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्लेनेट ऑन हाउस ओनली और द साइन ऑल्सो? लेट मी फर्स्ट कवर दिस पार्ट ओनली। अब 12th हाउस में जब मंगल एमईपी पे प्लेस्ड है तो 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस को मंगल डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो तो एक पार्ट हो गया। सेकेंडली वहां साइन कौन सा है? लियो, विच इज द मूल त्रिकोण साइन ऑफ सन। सो सन की सिग्निफिकेशंस भी डिस्ट्रॉय करेगा। सन कहाँ प्लेस्ड है? असेंडेंट में। सन भी आगे अफ्लिक्शन दे रहा है। खैर वो तो चार्ट अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है कि हम हाउस को ही देखेंगे या साइन को भी देखेंगे? साइन को भी देखेंगे अगर यहाँ पे मूल त्रिकोण साइन है तो। अब शनि अगर एमईपी पे हो और वो स्कॉर्पियो में हो तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। उस केस में साइन का सिर्फ यही आइडेंटिफिकेशन है कि मूल त्रिकोण है कि नहीं। अगर मूल त्रिकोण है तो उसके प्लेनेट पे भी उसका इंपैक्ट आगे पास ऑन हो जाएगा। Okay, there are few questions in the chat window also. Whether exalted planet is in retrograde mode, will still it be considered exalted or considered as debilitated? If the planet is exalted, it is exalted. Direct motion और retrograde motion से उसकी stationarity का पता चलेगा, और retrograde motion का impact transit में ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो पहले अगर वो स्पेशली अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु की अगर बात करें जो कि बहुत ही स्लो मूविंग है और ट्रांजिट में 10 डिग्री को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे थे, रेट्रोग्रेड हो गए, वापस 10 डिग्री के ऊपर आ गए, फिर डायरेक्ट हो गए, फिर 10 डिग्री को क्रॉस किया, तो काइंड ऑफ 2 से 2.5 महीने की जो उनकी स्टेशनरी मूवमेंट है, और गॉड फॉरबिड हॉरोस्कोप में 10 डिग्री एमईपी हो या कोई प्लैनेट उन्हीं के इम्पैक्ट में 10 डिग्री में आ रहा हो, तो वो सिग्निफिकेशन 2.5 महीने के लिए अटक गई। कोई बेचारा जेल से छूटने वाला हो और 2.5 महीने के लिए राहु केतु अटक गए तो वो और लटक गया उसका कोर्ट केस आगे। So this is how we have to identify the retrograde motion. Retrograde का नेटल चार्ट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और exalted है तो exalted, retrograde होने से debilitated नहीं होगा। Similarly, the retrograde planet, if it's debilitated, no, I already answered it. Can you just read the example in my question? I only meant regarding aspect. Okay, what was your question? एस्पेक्ट में भी वही बात है। अगर हमने प्लेसमेंट ले लिया, अब हम अगर एस्पेक्ट की बात करें, मंगल का यहाँ 4th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? ठीक है, ओके। अगर हम आपके एग्जांपल की बात करें ऐश्वर्या जी, मंगल का 4th एस्पेक्ट 3rd हाउस में गया तो हाउस डिस्ट्रॉय हुआ, मंगल पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। मंगल का 8वां एस्पेक्ट 7th हाउस पे गया, जुपिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यस, आई आंसर्ड इट। Okay, understood. Well, good. Let's move forward. If planets no debilitation and exaltation, it's pretty straightforward. This image, I don't know whether you are online or not. If a planet is placed in the sign where it is, okay, I think I will take it up separately. It's pretty straightforward. एक सीधा सा हमारा सेट फॉर्मूला है, सेट टेबल है कि अगर प्लैनेट इस साइन में प्लेस्ड है तो उसको एक्सॉल्टेड मानेंगे, इस साइन में प्लेस्ड है तो डेबिलिटेटेड मानेंगे। क्यों मानेंगे? इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वेरी लार्ज टॉपिक। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये डेबिलिटेटेड क्यों है। अगर ये आपका सवाल है कि इस साइन में जाके प्लैनेट डेबिलिटेटेड क्यों माना जाता है, सूर्य जो है वो तुला में नीच का क्यों माना जाता है, मेष में उच्च का क्यों माना जाता है, मंगल जो है वो कर्क में नीच का क्यों माना जाता है, और मकर में उच्च का क्यों माना जाता है, इस क्यों का आंसर देने के लिए एक
ऑल टुगेदर डिफरेंट सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम एक अलग टाइम पे कवर करेंगे। एक्सेप्टिंग सन एंड मून अदर प्लैनेट्स ओन 2 houses but 1 मूल त्रिकोण, why? I think this is answered in the course itself, Rajkumar ji. You can go through the course and then you will have answer. I think you just recently joined the course. How to know the degree of planets? When you cast the horoscope, you get the answer. How to calculate the MEP? When you cast the horoscope, you get the answer. ट्रिपल ट्रांजिट को जातक की कुंडली में कैसे देखेंगे? रामनाथ जी, आर यू ऑनलाइन? फर्स्ट प्लीज कंफर्म। एंड everyone who is watching this live doubt clearing session, I think you are all aware, if you are following up the group messages, that Ramnath Betha ji has already passed the assignment and he scored 86% and he has got certificate of excellence as well. He has good understanding about systems approach concepts. He has learned the course very well. Congratulations Ramnath ji. I don't know whether you are online or not. ट्रिपल ट्रांजिट को लेके आपका सवाल है कि जातक की कुंडली में कैसे देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था और अभी हमारा सेशन का टाइम ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है और ट्रिपल ट्रांजिट में 22 फार्मूलाज हमारे हैं, उनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मे बी हम इसको ट्रिपल ट्रांजिट की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो अगले सेशन के लिए रख लेते हैं। जातक की कुंडली को देखकर किसी घटना के घटित होने की सही समय को कैसे जानें? अंतर्दशा देखेंगे, अंतर्दशा का लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे, अंतर्दशा के लॉर्ड पर ट्रांजिट से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम ट्रांजिट का सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए इसी हॉरोस्कोप की बात करें और ये देखिए कि आज के समय एट प्रेजेंट क्या इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का इनके हॉरोस्कोप पर, तो वो आज की प्लैनेटरी पोजीशन का यहाँ क्या इम्पैक्ट है, नेटल प्लैनेट्स का ट्रांजिट पे क्या इम्पैक्ट है। ये कई केस स्टडीज में हमने कवर किया है, बट ट्रांजिट के लिए स्पेसिफिकली एक अलग सेशन आई थिंक अगर रखें तो बेटर होगा। किसी जातक की कुंडली देखकर उसकी शिक्षा, व्यवसाय, शादी और संतान प्राप्ति के समय को कैसे जाने? नाउ रामनाथ जी, क्वेश्चंस आर मूविंग अ लेवल अहेड। पहला ये कि हॉरोस्कोप में वो इवेंट प्रॉमिस्ड भी है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, और अगर प्रॉमिस्ड है तो कब। यही तो ओवरऑल एजेंडा है हॉरोस्कोप एनालिसिस का। तो दैट इज वेयर दशा टेबल कम्स इन पिक्चर, दैट इज वेयर ट्रांजिट कम्स इन पिक्चर। सबसे पहले हमारा फोकस नेटल चार्ट के ऊपर रहता है कि प्रॉमिस कहाँ कहाँ पे है, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे है, शादी होगी कि नहीं होगी। और अगला सवाल क्लाइंट का यही आएगा, होगी तो जी कब होगी। अब उसके लिए दशा टेबल का भी आंकलन करना जरूरी है, ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा, और जब वही करना आ गया तो हॉरोस्कोप एनालाइज करना आ गया। दैट इज द फाइनल एम दैट वी हैव। सो ट्रांजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अभी पार्क करता हूँ यहीं, आई थिंक बाद में इसको कभी कवर करते हैं। सो बेनिफिशियल, आई एम ग्लैड टू नो ऐश्वर्या जी दैट यू हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन, एंड दोज ऑफ यू हु वुड लाइक टू परस्यू दिस area professionally, I would really urge you to go for the certificate of excellence. Solve the assignments, that will build your confidence. Certificate of completion anyone can get, कोई भी ले लेगा। कोर्स कंप्लीट हुआ, you are eligible to get certificate of completion, and I leave everything to you. I will not judge whether you have completed or not. You will tell me that I have completed, I give you the certificate. But thing is, you will get benefit out of it if you can analyze the horoscope. Certificate of excellence is only given when you are at that level. So that is what we judge from the assignments. So for now, let's close it out, and I connect with you on WhatsApp, on group, on email, and see you in the next session. Thanks very much guys, thank you very much. It was a fantastic session and a lot of interaction was there. Thank you very much. Bye bye.